Welcome back students. Good morning. Today's topic is synthesis. In first year class, synthesis carries 2 marks. In first year class, synthesis carries 2 marks. It is also important, this topic is also important for the competitive exam. Synthesis means admixture. Sanslation means to combine one or more than one sentences into one simple sentence, either into complex sentence, either into compound sentence. For the pre-introduction, we should know the definition of sentence. What is sentence? What is phrase? And third one is clause. All the three plays an important role in synthesis. Sentence means a group of words with verb which gives complete sense is called sentence. What is phrase? Phrase is a group of words without verb. phrase क्या है? phrase शब्दों का समूह होता है लेकिन उसमें कोई वर्ब नहीं होती. नेक्स्ट, clause. Clause is a part of sentence which has its own subject and predicate. क्लाज क्या है? क्लाज भी सेंटेंस का पार्ट है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. मतलब सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है. सेंटेंस प्लस कंजंक्शन प्लस सेंटेंस. सेंटेंस है प्लस कंजंक्शन है प्लस सेंटेंस है, तो ये क्या कहलाएगा? सेंटेंस फिर नहीं कहलाएगा, ये फिर क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा. और ये क्या कहलाएगा? ये भी क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा. और जब एक साथ इसको कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस. गॉट इट? सेंटेंस प्लस कंजंक्शन प्लस सेंटेंस क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस, आइदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कंजंक्शन से पहले जो सेंटेंस है वो क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा. कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस है वो भी क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा. और फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ words without verb having its sense is called phrase.
I hope you have got it. Sentence, a group of words with verb, is called sentence, which gives its full meaning. Types of sentence. Simple, compound and complex. Simple, compound and complex sentence. What is the characteristics of simple sentence? Simple sentence is a sentence which has single finite verb. Now you can ask the question, what is finite verb? Finite verb क्या है और नॉन फाइनाइट क्या है? A sentence which has a single finite verb. Finite verb means main verb. The verb which works as action is called finite verb. Compound sentence. In compound sentence, there must be single principal clause and at least there must be single coordinate clause. कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज होती है और कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है. प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज. Now the question is arisen, what is principal clause and what is subordinate clause or coordinate clause? Now the question is what is principal clause and coordinate clause? What is principal clause and subordinate clause? Clause. Principal clause clause without conjunction. And coordinate clause
clause with coordinating conjunction. Clause with coordinating conjunction is called coordinate clause, principal clause, clause without conjunction, and subordinate clause. Clause with subordinate conjunction is called subordinating clause. A coordinating clause makes a compound sentence and subordinating clause makes a complex sentence. अब you have to differentiate coordinating conjunction and subordinating conjunction. For that you have to the conjunctions of coordinating clause and subordinating clause at your fingertips. At your fingertips. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जानने के लिए तुम्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट पता होनी चाहिए। कंपाउंड सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट तुम्हारी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। Now we hope that you have understood the difference between compound, simple and complex sentence and pre-knowledge of synthesis as sentence, phrase and clause. First topic is for the formation of simple sentence. Formation of simple sentence. अब सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है और सिंथेसिस में क्या है? सिंथेसिस मीन टू ज्वाइन two or more than sentences and convert into simple sentence. Convert into a single simple sentence. तो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है। पहले ही हम बता चुके हैं कि सब्जेक्ट जिस सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब जो किसका काम कर रही है? वर्ब का काम कर रही है। एक सिंगल वर्ब जिसमें है वो सेंटेंस हमारा कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। अब जब सिंथेसिस में क्या करना है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो अगर हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है तो एक फाइनाइट वर्ब है, दो सिंपल सेंटेंस हैं तो दो फाइनाइट वर्ब हो गई एंड तीन है तो तीन हो गई एंड सो ऑन। जितने सिंपल सेंटेंस उतनी ही हमारे पास फाइनाइट वर्ब है। अब इसका मतलब क्या है?
बनाना हमें क्या है कि एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंथेसिस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जब एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो केवल हमें एक वर्ब बचा के रखनी है, फाइनाइट वर्ब, और अदर वर्ब को, अदर सेंटेंसेस की वर्ब्स को हमें एनी हाउ रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है, और सेंटेंस का अर्थ भी नहीं चेंज होना है। जैसे you will fall ill. You do not take rest. तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम आराम नहीं करते हो। तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम आराम नहीं करते। अब इसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है, फिर हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर क्या है, वर्ब है, और फिर इसका मतलब दो सिंपल सेंटेंस है, दो फाइनाइट वर्ब है। अब दोनों को हमें एक करके क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम आराम नहीं करते हो, इसको एक करके बनाना है। तो क्या होगा, यू विल फॉल इल विदाउट टेकिंग रेस्ट। तुम बिना आराम किए बीमार पड़ जाओगे। You will fall ill without taking rest. Without taking rest. Take rest. हमारे पास वर्ब क्या है, take rest। अब इसको हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, नॉन फाइनाइट में। नॉन फाइनाइट क्या है, वर्ब कितनी तरह की, दो तरह की, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। अब इसके पहले, ये सब जानने से पहले हमें वर्ब, सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, ये सब जान लेना है कि वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो कौन सी, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब को हमने पहले क्लासिफाई किया तो कितने में, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब को रीक्लासिफाई करते हैं। फाइनाइट को रीक्लासिफाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लिंकिंग, नेक्स्ट हेल्पिंग, नेक्स्ट एक्शन। इन्हीं को चाहे एक्शन वर्ब कहिए और चाहे इनको कहिए डू फॉर्म। एक्शन वर्ब कहिए या डू फॉर्म कहिए, इनको लिंकिंग वर्ब कहिए या फिर इनको क्या कहिए, टू वी फॉर्म। लिंकिंग, हेल्पिंग एंड एक्शन।
लिंकिंग, हेल्पिंग एंड एक्शन। अब लिंकिंग को हम दो क्या कह सकते हैं, टू बी फॉर्म, और एक्शन को क्या कह सकते हैं, डू फॉर्म। और नेक्स्ट वन इज मॉडल। तो फाइनाइट वर्ब को का क्लासिफिकेशन क्या है, लिंकिंग और टू बी फॉर्म, हेल्पिंग एंड एक्शन या डू फॉर्म, एक्शन फॉर्म कहिए या डू फॉर्म कहिए, और मॉडल वर्ब कहिए। नॉन फाइनाइट का क्लासिफिकेशन क्या है, जीरंड, इन्फिनेटिव, एंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को फिर से हमें सब डिवाइड करना है। Participles are three types: present, past and perfect. एक्शन, मॉडल, फिर नॉन फाइनाइट में जीरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। जीरंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थैंक यू क्लास। वी विल डिस्कस अबाउट in detail verbs in next class. Thank you. Keep on watching video.